تھے کچھ بہت اہم ترین تفصیلات، جس میں علیمہ خان کی کچھ تازہ ترین گفتگو بھی سامنے آئی ہے اڈیالہ جیل سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس والا معاملہ، سیولنس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل، اس حوالے سے بھی کچھ اہم خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ایک جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم رہا پاکستان کے اندر، کس طریقے سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ فوج کی تحویل میں ایک جو کارکن پاکستان تحریک انصاف کا موجود تھا، اس کو کس طریقے سے الٹا لٹکا کر اس پر زہریلی مکھیاں چھوڑی گئی، یہ تمام تر کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن آغاز کریں گے، نظام جکڑا ہوا ہے، نظام شدید پریشانی کا اور پینک کا شکار ہے، اور وہ سمجھ آتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا ایک تازہ ترین سٹیٹمنٹ سامنے آیا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی یہ جو عمران خان کی صحت اور عمران خان کی سیکیورٹی والے معاملات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی وقت عمران خان کو ان کی جگہ تبدیل کی جا سکتی ہے، ان کو کہیں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ سنیے گا۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسی ہو سکتی ہیں کہ ان کی صحت یا ان کی سیکورٹی کے پیش نظر جو ہے کوئی بات ہو سکے یا کی گئی ہو، لیکن فی الحال اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ امکانات ہو سکتے ہیں سیکیورٹی کے پیش نظر ان کو کہیں پہ منتقل کیا جائے جہاں پہ ان کو خطرہ رہا۔ جی امکانات تو کسی بھی حوالے سے ہو سکتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے سیکرٹری ڈاکٹر مشتاق کی جانب سے کچھ بڑا اہم ترین سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر پاکستان کی عدلیہ کے اوپر، نظام انصاف کے اوپر ایک ایسا داغ جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور پھر اس داغ نے جو سروسز فراہم کی ڈیفینیٹلی اب ان کا معاوضہ بھی وہ وصول کرے گا۔ تو اب یہ ڈاکٹر مشتاق صاحب بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر موجود ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جتنا میں ان کو جانتا ہوں، جس قسم کے وہ شخص ہیں، وہ گمنامی میں مزید نہیں رہ سکتے۔ یعنی اب آپ اندازہ لگا لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ گمنامی میں نہیں رہ سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنے ایک ایک چیز کا معاوضہ وصول کریں گے، اور یہ سب جانتے ہیں، یعنی یہ سب جانتے ہیں کہ قاضی صاحب نے جو جو کچھ کیا ہے اس کی ایک ایک چیز کا ریٹرن انہیں ضرور ملے گا۔ اب یہ کیا رہے ہیں، ایک پوڈ کاسٹ کے اندر موجود ہے یہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو بلے والا فیصلہ تھا 13 جنوری کا فیصلہ، جو تاریخ میں اپنے اس میں ایک کس حروف میں لکھا جائے گا، مطلب ایک اپنے تئیں ایک بہت بڑی مثال بنے گا یہ فیصلہ، آنے والی نسلیں اس محتسبانہ فیصلے کو پڑھیں گی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے، سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر مشتاق کہ میں نے قاضی صاحب کو اس حوالے سے بار بار جب ہماری ڈسکشنز ہوتی تھی تو میں نے ایک تو انہیں کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز میں، اتنی مائکرو مینجمنٹ کے معاملات کے اندر نہیں جا سکتا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بطور پارٹی اس فیصلے کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے قاضی صاحب کو آخر میں یہ بھی کہا کہ فیصلے کی یہ جو ٹائمنگ ہے الیکشن سے اتنے دن قبل، یہ ٹائمنگ درست نہیں ہے۔ یعنی قاضی صاحب کو اپنا سیکرٹری سمجھاتا رہا کہ آئین، قانون، وقت، یعنی تمام تر چیزیں ابھی اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کر رہی، لیکن قاضی صاحب بضد تھے، کیونکہ قاضی صاحب شاید بہت پہلے کہا جاتا ہے کہ کسی مخصوص جگہ کے اوپر کچھ ڈیلز، کچھ ڈاکیومنٹس، کچھ دستاویزات کے اوپر دستخط کر کے آ چکے تھے۔ آگے بڑھیں اگر اس سے آگے تو ایک اور خبر ہے، عمران خان ہوگا، یعنی رانا صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ 26 نومبر، یہ 9 مئی یا 8 فروری والے جو واقعات ہیں، اس کے اوپر جب تحقیقات ہوں گی، جب خان باہر آئے گا، پاور کے ساتھ آئے گا، وہ پھر ان کے اوپر تحقیقات کروائے گا، تو پھر پیچھے جو کڑیاں ملتی ہیں، جو بندہ بھی ملوث ہے، وہ تمام کے تمام لوگ پھر کال کوٹری کے اندر ہوں گے، سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اب رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے، یہ تمام تر سچویشن ہمارے سامنے ہے۔ کہا جا رہا ہے عمران خان کو شفٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری جانب علیمہ خان کی کچھ تازہ ترین سٹیٹمنٹس، اڈیالہ جیل کے باہر سے انہوں نے گفتگو کی، اور گفتگو بڑی دلچسپ ہے۔ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ اب مجھ پہ، عمران خان کی فیملی کے اوپر بھی ملاقاتیں محدود کر دی گئی ہیں، مجھ پر آج بین لگا ہوا تھا اور مجھے کسی وجہ سے گیٹ سے اندر نہیں جانے دیا گیا، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ اندر گئی، انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ علیمہ خان کو اندر نہیں آنے دیا گیا، جس پر خان صاحب نے اس کو جو تمام کی تمام کورٹ پروسیڈنگز تھیں جو اندر چل رہی تھیں وہ رکوا دی۔ یہ سنیے گا وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو ہمیں گیٹ سے اندر نہیں جانے دیا، ہم احتجاجاً پہلے پیدل چل کے اندر چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا کہا کہ آپ باہر بیٹھیں گی، ڈاکٹر عظمیٰ اندر جا سکتی ہیں۔ میرے اوپر آج جیل میں بین لگا ہوا تھا، ڈاکٹر عظمیٰ اندر گئی، انہوں نے جا کے عمران خان کو بتایا کہ ان کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا، تو عمران خان نے پہلے 1-2 دفعہ جج کو کہا، پھر عمران خان نے کورٹ کی پروسیڈنگز روک دیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری فیملی کو اسی طرح آپ روک کے ختم، آہستہ آہستہ انہوں نے فیملی کو تو بالکل ہی محدود کر دیا کہ 3 بہنیں آ جائیں، نہ ہمارے بھانجے جا سکتے ہیں، نہ ہمارے بچے جا سکتے ہیں، نہ ان کے کزنز آ سکتے ہیں، جو پہلے اجازت ہوتی تھی۔ اس وقت انہوں نے جو عمران خان کی ایکسیس ہے اس کو محدود کیا ہوا ہے۔
यानी एक जानिब ऑफर्स की जा रही हैं कि इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है, सेहत के मामला, सिक्योरिटी मामला, तो दूसरी जानिब उनकी अपनी बहनों से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। वजह ऑब्वियसली वो सेंसरशिप है कि बयानात जो है वो बाहर एज इट इज़ ना आ सके। अभी ये खबर जो जिस तरीके से आपने सुना कि अलीमा खान ने जो बाहर आकर गुफ्तगू की, अगर यहीं से आगे बढ़े तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे जिस तरह एक बंद बांधने की कोशिश की गई और जिस तरीके से डिसमेंटल करने की, यानी डिसमेंटलिंग ऑफ पीटीआई प्रोजेक्ट जिस तरीके से अनाउंस किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, लोगों को उठाने से, डराने से, धमकाने से ये मामला शुरू हुआ, लेकिन किया कुछ नहीं जा सका। फौजी तहवील के अंदर 20 माह रहने के बाद ये एक नौजवान समी वजीर, आपके साथ स्क्रीन पर इनकी वीडियो भी चलेगी, उन्होंने किस तरीके से आपने जो उनके अंदर उनके एक कंसर्न्स हैं या उनकी फीलिंग्स और इमोशंस उनका इजहार वो कर रहे हैं, उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। बताया हुआ है कि उन्होंने मुझे बांध कर उल्टा लटका दिया, फिर मुझ पर जहरीली मक्खियां छोड़ दी जो मुझे बार बार काट रही थी। मैं रोता और उनसे मिन्नत करता रहा कि मुझे छोड़ दे। समी वजीर की आहो पुकार, और ये आपके साथ वीडियो स्क्रीन पर चल रही होगी। यानी इस नौजवान के चेहरे के तासुरात होंगे, इसकी माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, इसके बच्चे होंगे, बाप होगा बूढ़ा, यानी बहन भाई होंगे। ये शख्स क्या पैगाम दे रहा है? यानी ये नौजवान नस्ल है जिसने आपका एजेंडा, आपकी मोहब्बत को लेकर आगे चल रहा था, लेकिन किस तरीके से इसको दूर किया गया, किस तरीके से इदारे की जानिब से, यानी ऑब्वियसली फौजी तहवील में जो लोग तो फिर किसकी तहवील में थे, मैं और आप सब जानते हैं, तो किस तरीके से इसको मारा गया, यानी ये डिसमेंटल करने की कोशिश की गई। इस तरीके से जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करके कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा सकता है। वर्कर टूट जाएगा, इमरान खान टूट जाएगा, लीडर टूट जाएगा। कभी लीडर को धमकी दी जाती है, कोर्ट मार्शल हो जाएगा, मिलिट्री कोर्ट्स में आपको भेज देंगे, तमाम तर धमकियां दी गई। लेकिन हुआ क्या, सिंध की तरफ जो यहाँ से कारकुनान रिहा होके गए, वहाँ जाके उन्होंने जो गुफ्तगू की, जिस तरीके से उन्होंने नारे लगाए, यानी हो कुछ नहीं सका। जो डिसमेंटलिंग ऑफ पीटीआई प्रोजेक्ट था वो कहीं से भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, आपकी वो जो एक इज्जत, वो जो एक रोब था, वो जो एक प्यार था लोगों के दिलों में, वो ख़त्म हो चुका है। और ये वीडियो, ये तासुरात उस शख्स के, जिस तरीके से वो फिंगर्स, यानी साइकोलॉजिकली वो लग रहा है कि किस हद तक वो डिस्टर्ब है। लेकिन जो डिसमेंटलिंग ऑफ पीटीआई, अगेन वो प्रोजेक्ट तो कामयाब नहीं हो सका। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि मिडिल क्लास है, ये पाकिस्तान की वो क्लास है, ये तमाम तर वो लोग भी लड़के, ये जो फौजी तहवील में थे, जो अडियाला जेल के अंदर थे, या जो बाकी मुल्क की जेलों के अंदर थे, अभी भी कस्टडी में हैं, इंसाइड दहशतगर्दी की अदालतों में पेशियां देते हैं, ये तमाम तर मिडिल क्लास के लोग हैं। कोई जाके अपने घर वापस नौकरी शुरू करेगा, किसी ने पीछे अपना कारोबार छोड़कर आया होगा, किसी के बच्चे पीछे स्कूल जा रहे होंगे। यानी वो तमाम तर वो लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ा 20-20 माह गुजारने के बाद भी, या जिनको इतने महीनों आपने जेलों में रखा है। आपने दरअसल जेल का खौफ, आपने इवन वो फौजी अदालतों का, फौजी तहवील में जाने का खौफ, पर्चों का खौफ, आपने तमाम तर खौफ खत्म कर दिए हैं। और किसी तरीके से जो एक रोब और दबदबा है वो कामयाब नहीं हो पा रहा। अब वो तमाम तर खौफ खत्म होने के बाद हो क्या रहा है, दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। एक तो इमरान रियाज खान का एक क्लिप मैं आपके सामने रखूंगी, इसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाकायदा तौर पे कह दिया गया है कि अच्छा बच्चों की तरह जो काम चल रहा है इसको चलाए। नून लीग को गारंटी दे दी गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और मरीम नवाज के बारे में वो कह रहे हैं कि उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। फौजी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में वो क्या कह रहे हैं, ये सुनिएगा। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जिसको चाहती है मावराए कानून जेल में डाल देती है, जिसे चाहती है वो जबरी तौर पे लापता कर देती है, जिसे चाहती है वो उसे इक़्तिदार में ले आते हैं, जिसे चाहते हैं उसे इक़्तिदार से निकाल देते हैं। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के बहुत बड़े बड़े कारोबार और बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं जिनके बारे में अब सारी दुनिया जानती है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर इमरान खान साहब कुछ शराइत नहीं मानते तो फिर इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब शराइत मान ही नहीं रहे। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें आपने देखा, उन्होंने कहा जी 10 साल का मंसूबा है। जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनकी पॉलिसी है कि इसी तरह चलाओ मामला, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कोई रूम नहीं है। तो फौज का पॉलिटिक्स के अंदर जो किरदार है वो तो सबके सामने, आपको ढका छुपा तो है नहीं। मरीम नवाज को एक्टिवेट किया गया। आप गुज़िश्ता 2 दिन से मरीम नवाज के लहजे के अंदर रऊनत देख रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि ये वही रऊनत है जो कुछ अरसा पहले हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब जुल्म और जबर की चक्की बहुत ज्यादा तेज चली है तो उस वक्त एक खामोशी भी थी। अवाम के अंदर जब शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आया तो उस वक्त एक खामोशी भी थी, लेकिन उसके बाद ये जो रऊनत वाली आवाज़ है और वो जो लहजा है वो दोबारा से अब आप महसूस कर सकते हैं। अब जिस तरह इमरान रियाज खान साहब जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से मरीम नवाज खान की लहजे में एक रऊनत महसूस हो रही है, वहीं पर खबर ये है पंजाब सेट टू रेज न्यू राइट मैनेजमेंट फोर्स, जिसमें एक बाकायदा तौर पे एक प्लान आया है सामने जिसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा ट्रेन्ड डॉग्स फॉर क्राउड डिस्पर्सल, यानी क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए डॉग्स को, यानी कुत्तों का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के क्राउड, कौन से क्राउड की बात हो रही है हम सब जानते हैं। आम आवाम गोलियां चला ली,
सब करके देख लिया, अब कुत्तों को लाउंज करने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बाकायदा ट्रेन डॉग्स लाए जाएंगे मैदान में, वो डिस्पर्स करेंगे क्राउड को और ये रऊनत वाज़ेह है। यानी ये वज़ीर आला पंजाब है जो कहती होती है जगह जगह जाके कि मैं आपकी माँ वज़ीर आला बतौर माँ आपसे खिताब कर रही हूँ, तो बतौर माँ ये एक नया पैगाम सामने आ चुका है कि राइट मैनेजमेंट फोर्स लाउंज करवा दी गई है, जिसके अंदर बाकायदा तौर पे 500 के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या कुछ तादाद भी लिखी हुई है, बाकायदा डॉग्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे और वो क्राउड को डिस्पर्स करने में, मुंतशिर करने में अपना एक किरदार अदा करेंगे। ये हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की। यहाँ पर समी इब्राहिम साहब का भी एक क्लिप है, आगे बढ़ने से पहले वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। समी इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जो हाल अहवाल है, अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जो डिस्कशंस चल रही हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ब्लूम अपनी अलविदाई तैयारियां कर रहे हैं और उसके साथ साथ अमेरिकन एम्बेसी के अंदर एक दूसरे से मुलाकातों के अंदर लोग क्या बात कर रहे हैं, वो सुने। यूएस एम्बेसी में कल एक फंक्शन था जिसमें बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे, सहाफ़ी भी इनवाइटेड थे। तो वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, अगर हम उसको सामने रखें तो आपको पता चलेगा कि आइंदा क्या होने वाला है। जो अमेरिकन एम्बेसी में सहाफ़ी गए, उनके साथ गुफ्तो शनीद का सिलसिला अमेरिकन डिप्लोमेट्स का, तो सवाल किया गया उनसे, कुछ सफारतकारों से, कि जनाब ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे हैं, बड़े बयान शान सब कुछ हुआ, तो क्या जो पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं? तो उन्होंने आगे से हंसते मुस्कुराते हुए ये कहा, भाई साहब आप हमसे पूछ रहे हैं पाकिस्तान में क्या होने वाला है, हमें तो ये नहीं पता कि एम्बेसी में हमारे साथ क्या होगा। तो बड़ा एक इस पर एक कहका भी बुलंद हुआ कि क्या होना है एम्बेसी में, आप तो माशाल्लाह इतना बड़ा मुल्क है, बड़ा सेटल्ड है हर चीज़, तो आपके साथ क्या होना है? उन्होंने कहा कि ये पता नहीं क्या होना है, हम तो खुद इस मामले में बड़े परेशान हैं और कुछ नहीं कह सकते। फिर जनाब ये पता चला वहाँ पे जो सहाफ़ी गए हुए थे कि जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम, वो अपना सामान उन्होंने पैक कर लिया और वो वापस जाने का बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो अभी जो उनका टेन्योर है वो अभी खत्म होने में थोड़ा टाइम है, यानी अभी वो कुछ दिन मजीद यहाँ पे बड़े आराम से रुक सकते थे। वैसे भी उनके वीडियोस देखे, कभी फज्जा के सिरी पाए खा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, बड़े कल्चरल और खास तौर पर शरीफ खानदान के तो बहुत ही वो मोतकद थे। उन्होंने मरीम नवाज से, नवाज शरीफ से बड़ी मुलाकातें की, फिर जरदारी साहब से भी मुलाकातें वगैरह होती रही हैं। अगर नहीं मिले तो बस सिर्फ खान साहब से नहीं मिले। आपको याद होगा कि अमेरिकन कांग्रेस के अरकान ये कहते रहे वहाँ पर हियरिंग में कि अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम को जाना चाहिए अडियाला जेल में और वहाँ पर इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए, उनके हालात देखने चाहिए। मिस्टर शर्मन उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन डोनाल्ड ब्लूम ने ऐसी कोई कोशिश कि हफीजुल्लाह न्याजी ने बाकायदा तौर पे कहा है, इस बात का जिक्र किया है कि मरियम नवाज मेरे बेटे से या मुझसे माफ़ी मांगे। जिस तरीके से मरियम नवाज ने गुफ्तगू की हसान न्याजी के हवाले से पिछले दिनों, जिस तरीके से कहा कि हसान न्याजी ने बाकायदा तौर पे फौजी वर्दी को एक डंडे पर टांगा, तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब ये कह रहे हैं कि हसान न्याजी से मंसूब करके जो वाक़या बयान किया जा रहा है बिल्कुल गलत है। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आज समात हुई और समात पीर तक मुलतवी हो गई। समात में आज भी ख्वाजा हारिस की जानिब से कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं जमा करवाया गया। यानी ख्वाजा हारिस साहब अभी तक ये नहीं बता सके कि एक स्पीकिंग ऑर्डर, एक कोई दस्तावेजात या एक कोई डॉक्यूमेंट या ऑर्डर सामने मेज़ पर रख के अदालत को दिखाएं कि इस ऑर्डर के तहत, इस नोटिस या इस हुक्म के तहत जो तमाम तर मुल्ज़मान थे उनको फौजी तहवील में दिया गया था, वो कौन सा ऑर्डर था, वो कौन सी एक बाकायदा तौर पे एक कोई डॉक्यूमेंट मौजूद था जिसके तहत जो है वो इन तमाम तर लोगों की हवालगी की गई फौजी अदालत को या फौजी तहवील में इनको दिया गया। आज जजेस की जानिब से कुछ बड़े दिलचस्प रिमार्क्स भी सामने आए। जजेस ने सबसे पहले तो ये कहा कि हमें तरीकाकार वाज़े किया जाए और बताया जाए कि किस तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का तरीकाकार क्या है, उस पर हमें मुतमईन करेंगे। जमाल खान मंदूखेल ने कहा, उस पर मुसरत हिलाली ने यह भी कहा कि जो अफसर ट्रायल चलाता है फौजी अदालतों में, जो अफसर ट्रायल चलाता है वो फैसला खुद नहीं सुनाता, बल्कि फैसले के लिए वो तब केस आगे अपने बड़े अफसर को भेज देता है। तो जब बड़े अफसर ने वो तमाम तर केस सुनाई नहीं होता, ट्रायल सुना नहीं होता, ट्रायल चलाया नहीं होता, तो वो फैसला दे कैसे सकता है। उस पर जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि मुझे 34 साल हो गए इस शोबे के अंदर, लेकिन मैं आज भी अपनी जजमेंट को और अपने आप को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा होगा? नईम अख्तर अफगान ने यह भी कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के मराहिल क्या हैं, उस पर भी हमें बताया जाए। जिस पर मोहम्मद अली मजहर ने बोला कि कोर्ट मार्शल का पूरा तरीकाकार एक आइन में लिखा हुआ। यानी मोहम्मद अली मजहर, कल भी जिक्र हुआ, वो अपनी कोई फ्यूचर की चीफ जस्टिस की कुर्सी देख रहे हैं, आइनी बेंच का सरबराह होना देख रहे हैं। वल्लाह आलम मामला बुनियादी हकूक के हवाले से बेसिकली अदालत में नुक्ता उठाया गया कि मामला बुनियादी हकूक का है, आइन के आर्टिकल 10A का है। अब सवाल ये उठता है, अगर हम कंक्लूडिंग इस पे बात करें तो जो मिलिट्री का मामला है, जो फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल का मामला है, इस पर बात की जाती है कि अपील का हक है। जिस अपील का हक है उस अपील में सिर्फ देखी जाती है नीयत देखी जाती है। इस अपील में ये देखा जाता है कि मेलाफाइडी तो नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखा जाता। और नीयत क्या थी इन तमाम तर लोगों को फौजी अदालत में भेजने की, ये मैं और आप सब जानते हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आर्मी एक्ट के अंदर बुनियादी हकूक वैसे ही मुअत्तल होते हैं। कहा जाता है ना बुनियादी हकूक मुअत्तल नहीं होते, तो बुनियादी हकूक तो वैसे ही मुअत्तल होते हैं। तो अब ये आज की तमाम तर समात का अहवाल था, कोई स्पीकिंग ऑर्डर जमा नहीं कराया जा सका। आज भी ख्वाजा हारिसी दलाइल देते रहे, पीर से भी ख्वाजा हारिसी दलाइल का आगाज़ करेंगे। और आज तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दलाइल का अभी पार्ट 1 था और अभी जो है वो दलाइल ऑब्वियसली जारी रहेंगे। लेकिन अब जो चमगोइयाँ हो रही हैं कि 4-3 से ये फैसला सामने आएगा, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अदालतों के रिमार्क्स कुछ और होते हैं, फैसले कुछ और आते हैं। अब ये मामला किस तरफ जाता है, ऊँट किस करवट बैठता है,